میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے۔ 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے شادیاں، خوشیاں، نصیب، مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سال سے بتا رہا ہوں، اور سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے۔ بہت رویا، اتنا رویا کہ میں نے کہا مولا مرشد بھی لے لیا تو نے، اور مخلص بھی لے لیے، اور تیرا ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیرا ساتھ ہوتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہ لگتی اور لوگوں کی ان کیفیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پر رو کیسے سویا تو مسلح پہ ہی، وہ ٹکڑوں والی سندھ کا ایک خاص انداز ہے، اس کی چائے نماز بنی ہوئی تھی جس میں آدمی اتحیات میں ہی بیٹھ سکتا تھا، چھوٹی سی تھی۔ بس ویسے ہی میں سے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آئے، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا اور میں بلک بلک کے رویا۔ فرمانے لگے تجھے یاد ہے تجھے فلاں وظیفہ دیا تھا؟ اور میں ان کے سینے سے لگاؤں اور میں عرض کروں جی مرشد۔ فرمایا اس سے زیادہ ٹھوکروں اور قربانی سے مجھے ملا تھا۔ تجھے یاد ہے تجھے میں نے فلاں عمل دیا تھا، فلاں نقش دیا تھا، فلاں تعویذ، ایک ایک چیز دہرائی۔ اچھا وہ دہراتے جا رہے تھے، میرا غم ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر کی ٹھنڈک، خلوص، سچائی، میرے پچھلے سارے چھالے، غم، ٹھوکریں، کانٹے، بھوک، پیاس، جاگنا، بے خوابی، ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، منزل مل جائے گی، بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا، پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کر صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیند کھلی نا تو اس ایک اذان کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان بغیر سپیکر والی میرے کانوں میں پڑی، فجر ہو گئی ہے۔ تو میں اٹھا، اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں۔ ان کی اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے۔ میں بے تاب انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی۔ کیوں سائیں، آپ نے تو عمل لینا تھا۔ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگے میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ میں نے کہا بس آپ دعا فرما، آپ کے مہمان نوازی کی، میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی۔ وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں اس کے ساتھ تھی۔ میں آ گیا، پھر وہی ویگنیں، وہ ایک ڈالے، پھر وہی راستے، وہی چیزیں، پھر وہی سفر، کبھی پیدل کا، کبھی تانگے کا، کبھی کچے راستوں۔ واپس ان کے پاس پہنچا میں۔ جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں۔ میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا، رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو، ایک رومال تھا میرے پاس، میں نے اس میں باندھ لیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ سائیں مجھے معاف کر دیں۔ میں کہا بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ کہہ رہے نہیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہہ رہے کھانا، میں نے کہا میں لایا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، آپ میرے ساتھ چلیں،
अच्छा खाना पका हुआ था, मुझे खिलाया और खिला के कहने लगे आपकी मुलाकात मुझे बहुत महंगी पड़ी। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा रात के आखिरी पहर में अजान से पहले एक बाबा जी हैं, इस शक्ल के, इस शक्ल के, इस शक्ल के बाबा जी, वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे, उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे और कहने लगे मेरा बेटा तेरे दर की गुलामियां करता फिरे, तुझे पता नहीं कि वो कौन है और तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। मुझे बहुत मारा, मैं माफिया मांगता रहा और उनके साथ ताकतवर तरीन कोई बलाई थी इधर उधर कि अगर मैं उनके ऊपर हाथ उठाता हूं वापस, मैं ताकतवर था, वो कमजोर थे, तो बलाएं इंतजार में थी मुझे खा जाती। और साथ एक बहुत बड़ा आग का अलाव था, वो जल रहा था और इस बात का इशारा था कि उठा के तुझे उसमें फेंक देंगे। और मुझे एक एहसास हो रहा था मुझ जैसे बखील कंजूस वो पहले से उसमें जल रहे हैं, उनकी चीखों पुकार, उनकी आवाजें मुझे आ रही थी। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था। फिर अपने बदन से मुझे दाग दिखाए, थप्पड़ों के दाग दिखाए, उंगलियों के निशान, हाथों के निशान, जूतों के निशान, ताजा ताजा। और एक निशान होता है, एक ऊपर उबल आता है, इतना सख्त निशान होता है, यानी जैसे बंदा हाथ लगाए तो खाल भी उधड़ आएगी, ऐसी निशान जैसे किसी को ना बहुत ज्यादा मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। मुझसे फरमाने लगे आप आराम फरमा लें, मैं सुबह फजर के बाद आपको ये अमल शुरू करवाऊंगा। ये अमल मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। लेकिन मेरा एक वाकया भी आपको सुनना होगा सुबह कि ये मैंने अमल कहां से हासिल किया और कैसे हासिल किया, इसलिए मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि खुद मेरा हासिल ऐसा है कि वो खुद एक बहुत बड़ी दास्तान है, इसलिए मेरा जी नहीं चाहता मैं किसी को दूं। सुबह हो गई, रात कुछ पहली ही रात थी, मशरूम के बावजूद मुझे बड़ी नींद अच्छी आई। वो साहब आए, हमने इकट्ठी फजर की नमाज पढ़ी और मुझे मक्खन खिलाया, मुझे पराठे खिलाए, मुझे लस्सी पिलाई, मुझे सालन था सब्जी का वो खिलाया, मुर्गी का सालन देसी पकी हुई वो खिलाई, बहुत खाने खिलाए और बार बार कहते थे, रोते थे, माफ कर दे साईं, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आपके सर पर दाता साहब का हाथ, वो आपसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। और यकीन जानिए उस शख्स की माफी कैफियत ऐसी थी, मुझे ही रोना आ गया, तरस आ गया कि अल्लाह मेरी गलती है, मैंने जिद कर बैठा कि मैं लेकर जाऊंगा और मैं इधर उधर धक्के खाता रहा, शायद मेरी ही वजह से बेचारे को सजा मिली और मैंने खुद माफी मांगना शुरू कर दी। अब मैंने माफी मांगी तो बेचारा और परेशान हो गया, आप क्यों माफी मांगते हैं? मैं वो दास्तान कैसे बताऊं? याद रखिएगा, अल्फाज का तर्जमा हो सकता है, कैफियत का तर्जमा नहीं हो सकता। कभी वो रोए, कभी मैं रोऊं, कभी वो माफिया मांगे, कभी मैं मांगूं। वो माफिया वो मांगे जिसने मुझे दर दर ख्वार किया था, मैं माफिया मांगूं कि मेरी वजह से आपको इतनी बड़ी सजा मिल गई। बस ये कशमकश थी, उसमें नदामत दिल में, मेरे दिल में नदामत। फिर कुरान पाक उठा के ले आए, एक हाथ का लिखा हुआ कलमी मखतूता था, लिखा हुआ कुरान पाक था, हाथ का लिखा हुआ, उसमें सूरत फातिहा निकाली। मुझे कहने लगा आप देखते हुए सूरत फातिहा उस वक्त तक पढ़ें जब तक आपको रोकू ना और उंगली नहीं रखनी। क्यों? वर्का बहुत खस्ता था, टूट जाता था। मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, हत्ता के इशराक हो गई, मुझे पता ना चला, चाश्त हो गई, मुझे पता ना चला, 10-11 बज गए, पता ना चला, 12 बज गए, पता ना चला, सूरज सर पे आ गया और सूरत फातिहा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। आखिर मेरे कंधे पे हाथ रख के पीठ पे कहने लगा, साईं बस। साईं, मैंने आपको सूरत फातिहा बख्श दी। और ये जब उसने बख्श दी ना
तो वो डूब गया, रो पड़ा और ऐसे हाथ रख के बिलक बिलक के रोने लगा। मैंने नियत की थी ये मुझे मिली है, मैं कब्र में लेके जाऊंगा, ये पहला शख्स है जिसने मुझे बेबस करके ले लिया मुझसे। और कहने लगा साईं, साईं, मुझे अब पता लगा आप कौन हैं। मैं दिल से दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ, और आपकी 7 नस्लों को दे रहा हूँ, 7 नस्लों को दे रहा हूँ, 7 नस्लों को दे रहा हूँ। अब आप सूरत फातिहा के आमिल हैं। अब इस सूरत फातिहा को अगर अब आप खाने के दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 दफा पढ़ेंगे तो अब लफ्ज सुने जो उसने कहे और मैंने पाए, और जिसको दिए उसने पाए। 7 आसमानों की बरकात मिनस समावात वल अर्द, और 7 जमीनों के खजाने उसे मिलेंगे जो हर खाने और पीने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा। साईं, ये अमल है, बस यही कुछ है। आप यकीन जानिए, जब उसने ये अमल दिया, कुरान पाक को बंद किया और वो घर रखने गया, बहुत रोया। मौला, तेरा नाम इतनी मुश्किल से मिलता है और तेरे नाम के मुतलाशियों ने क्या क्या कुर्बानियां की होंगी, क्या क्या मुजाहिदे किए होंगे। मौला, मैंने तो थोड़ी सी कुर्बानी की, मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत बड़ी मेरे लिए एक दास्तान और कहानी है। मैं इमाम तिरमिज़ी के मज़ार पे खड़ा था, हकीम तिरमिज़ी के मज़ार पे, तिरमज में, ऐसे सामने दरियाए आमू था, ऐसे खड़ा था और एकदम मेरी अचानक सोचों के धारे कहां चले गए। कितने दुर्वेश ऐसे थे जिन्होंने दरियाए आमू में खड़े होकर, दरियाए आमू रूस के बड़े दरियाओं में है, वो बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ा दरिया, उसके इधर अफगानिस्तान है। मौला, इस दरियाए आमू में कितने दुर्वेशों ने चिल्ले किए, कितने दुर्वेशों ने तेरा नाम लिया, कितने दुर्वेशों ने इस दरियाए आमू को कश्तियों के जरिए पार किया और अल्लाह की तजल्लियात और कमालात देखी। क्योंकि रिवायात में आता है दरियाए आमू के अपना पेंदे में, नीचे तह में रूहानियत और मार्फत के खजाने पड़े हैं। ये उनको पता है जो जाने, हमने सुने। और अगर मैं इस सारे वाक़े को बयान करना शुरू कर दूं तो 2-2.5 घंटे की दास्तान है नागवारियों, और मैं आपको सुनाता जाऊं और आप सुनते जाएं, यकीन वाले सुभान अल्लाह कहते जाएं और बेयकीन कहते जाएं कि ये क्या कहानी है, तोता कहानी है, और क्या दुकानदारी है और क्या शौकदेबाजी है। देखो बात सुनो, दुकानदारी शौकदेबाजी तो तब करूं कि ये एक, मैं गया था हिमालय के पहाड़ पे, वहां एक पत्थर मिला था, उसमें से मुझे एक दवाई मिली थी, मैंने एक दवाई बनाई, एक पुड़िया 5000 रुपए की है, जो खाएगा वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। या तो मैं अपनी दास्तान के बाद पुड़िया बेचूं और आप कहें कि तू दास्तानें सुनाता है, ऐसा मुमकिन नहीं। या कहानी के बाद कोई तावीज बेचूं, या मैं कुछ चीज, कोई नफा, दुनियावी नफा हासिल करूं। मुझे इन दास्तानों के बाद आपसे क्या लेना है? सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना है कि कोई चीज की बेकदरी ना करना। अगर मुफ्त में मिल जाए और सहूलत से मिल जाए, अगर बेकदरी करोगे अल्लाह नेमत छीन लेता है, हम खाली हो जाएंगे, वो नेमत उठा के किसी और को दे देगा। किसी एक अल्लाह वाले के बकौल ये लफ्ज भी याद रखिएगा, लोग हिजरत करते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं, नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास है तो कल उसके पास है। सूरत फातिहा अपने हर खाने पीने में, इसके कमालात के लिए इतना कहना काफी है। 7 आसमानों की बरकत, चाहे वो रिस्क, इज्जत, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरकत, खैरें, राहतें, रहमतें, आफियतें, नस्लों के लिए शादियां, खुशियां, नसीब, मुकद्दर, और 7 जमीनों के खजाने अल्लाह उस बंदे को अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा, जो सूरत फातिहा 7 बार अपने हर खाने और पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। वुजू इसके लिए शर्त नहीं, पाकी नापाकी इसके लिए शर्त नहीं, किबला रुख होना इसके लिए शर्त नहीं, काबा का साया इसके लिए शर्त नहीं, काबा का दरवाजे के सामने होना इसके लिए शर्त नहीं, सफा शर्त नहीं, मरवा शर्त नहीं, मुजदलफा शर्त नहीं,
अरफात शर्त नहीं, मीना शर्त नहीं, बैतुल मक़दस की छत के नीचे शर्त नहीं, इखलास, खुलूस, सच्चा यकीन शर्त है, अल्लाह के वादों पे यकीन शर्त है। जो करेगा अल्लाह उसको आंखों से दिखाएगा। मैं तो साल साल से बता रहा हूँ और साल साल से रब ने आंखों से दिखाए, मंजर दिखाए, बरकत, समरात, कैफियत, कमालात, हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, तहय्युरात, हैरत अंगेज चीज़ें।